Welcome SVPH to our presentation on chapter number 7, Mary Had a Little Lamb, and this is part 1 of our presentation. So children, the poet of this poem is Sarah Josepha Hale. S-A-R-A-H, Sarah, J-O-S-E-P-H-A, Josepha, H-A-L-E, Hale. So the poet of this poem is Sarah Josepha Hale. She wrote many poems. And one of the book name is Poems for Our Children. Mary Had a Little Lamb became one of the most famous poems that little children sing even now. She was born in America at that time when children, especially girls, were homeschooled. तो सारा जोसेफा हेल उन्हें बहुत सारी पोम्स लिखी थी, बहुत सारी कविता लिखी थी, एंड उनमें से उनकी एक बुक का नेम है पोम्स फॉर आवर चिल्ड्रन. इट्स फुल ऑफ पोम्स. ना उन्हें इतनी सारी पोम्स लिखी हैं, उनमें से एक सबसे ज़्यादा फेमस पोम है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. नाउ शी वॉज बॉर्न इन अमेरिका. वो अमेरिका में बॉर्न हुई थी, एंड एट दैट टाइम, उस टाइम चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स, खास करके जो गर्ल्स थी, वो होम स्कूलिंग क्या करती थी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय होम स्कूलिंग? सी, होम स्कूलिंग मीन्स व्हेन we study from home instead of going to the school. When we study from home, that's what we call as homeschooling. जब हम स्कूल जाने की जगह घर से पढ़ाई करते हैं, उसे हम होम स्कूलिंग कहते हैं. So in this chapter we are going to learn about Mary Had a Little Lamb. What this poem is telling us about? इस poem में क्या बताया जा रहा है हमें? So in this poem there is a girl whose name is Mary, M-A-R-Y, Mary, and there is a little lamb, L-A-M-P, lamb. What is lamb? Lamb is a baby of a sheep. Sheep के बच्चे को हम क्या कहते हैं? लैम्प बोलते हैं. तो इस पोम में जहाँ पर भी मैरी जाती है, wherever she goes, the lamp, little lamp, it follows her everywhere. तो जहाँ पर भी मैरी जाती है, उसके पीछे पीछे लैम्प हर जगह उसके साथ जाता है. So we all must have seen the rhyme of Mary Had a Little Lamb, है ना? हम सब ने Mary Had a Little Lamb की rhyme सुनी होगी. So let's hear it again. Okay? So let's start. Info bells. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. So children, I hope you have enjoyed this video. आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, right? So children, let's start with the chapter. We have seen the video of the rhyme, right? So in this chapter, the number of this chapter is chapter number 7, and the name of the chapter is Mary Had a Little Lamb. M-A-R-Y, Mary, H-A-D, had a little, L-I-T-T-L-E, little, L-A-M-P, lamb.
So Mary had a little lamb who is as loyal as a dog. Loyal का मतलब क्या होता है? What is the meaning of loyal? Loyal means वफादार. Loyal का मतलब होता है वफादार. तो जैसे डॉग, अगर आपने डॉग रखा होगा अपने पास, पेट डॉग अगर आपके पास है, तो आपने देखा होगा आप जहाँ पर भी जाते हैं तो जो डॉग होता है वो आपके पीछे पीछे जाता है, राइट. तो डॉग जैसे लॉयल होता है, वफादार होता है, वैसे जो मैरी के पास लिटिल लैम्प है ना, वो भी डॉग की तरह वफादार है. तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हु इज़ एज लॉयल एज अ डॉग. फाइन. नाउ, विच एनिमल डू यू लव द मोस्ट? विच, WHICH, which. ANIMAL, animal. DO, YOU, you. LOVE, love. THE, the. MOST, most. WHY, why. तो which का मतलब होता है कौन सा. एनिमल का मतलब होता है जानवर. डू का मतलब होता है करना. YOU, यू का मतलब होता है आप. लव का मतलब होता है प्यार. मोस्ट का मतलब ज़्यादा. वाई का मतलब होता है क्यों. तो विच एनिमल डू यू लव द मोस्ट एंड वाई. आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है एंड वाई, क्यों. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लव or I like rabbit the most. The animal which I like the most or love the most is rabbit. Why? Because it's very cute and it's very soft. तो मेरा फेवरेट जो एनिमल है वो है रैबिट. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लगता है और बहुत ही सॉफ्ट है. ऐसे ही आपको जो भी एनिमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, आपको उस एनिमल के नाम बताना है और आपको ये भी बताना है कि आपको वो एनिमल सबसे ज़्यादा प्यारा क्यों लगता है, आपका फेवरेट क्यों है वो. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन. लिस्ट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम A to Z and see how many you know. The LIST list, NAMES names of of A NIMALS animals, AND ant, BIRDS birds, FROM form, A to Z ant, AND ant, SEEC HOW how, MANY many, YOU you, KNOW no. तो लिस्ट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम A to Z. आपको क्या करना है, आपको दो लिस्ट बनानी है. एक में आपको एनिमल की लिस्ट बनानी है और दूसरी लिस्ट में आपको क्या लिखना है, बर्ड्स के बारे में. तो आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम लिखने हैं फ्रॉम A to Z. जैसे A से कौन सा एनिमल है, B से कौन सा एनिमल है, C से कौन सा है, D से E F G H I J K, ऐसे आपको पूरे एनिमल्स के नेम लिखने हैं. सेम विद द बर्ड्स, ऐसे आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं. एंड C हाउ मैनी, HOW हाउ. हाउ का मतलब होता है कैसे. C मतलब देखना, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, U मतलब आप, KNOW नो का मतलब होता है पता होना. तो क्या करना है, आपको लिस्ट करने हैं नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम A to Z एंड सी हाउ मैनी यू नो, और आपको देखना है आपको कितने पता है. सो आई विल जस्ट टेल यू द एग्जांपल. जैसे कि एनिमल्स A से हमें करना है ना स्टार्ट. तो A से कौन सा एनिमल होता है, A से एलिगेटर होता है, B से बेयर होता है, C से कैट होता है, D से डॉग होता है, E से एलिफेंट होता है. ऐसे आपको सारे एनिमल्स के नेम लिखने हैं Z तक. सिमिलरली आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं. तो सपोज़ O से हमारा ऑस्ट्रिच होता है, राइट. W से वुडपेकर होता है, F से फ्लैमिंगो होता है एंड H से हमिंग बर्ड होता है, राइट. तो ये सारे क्या हैं, बर्ड्स के नेम हैं. सिमिलरली S से स्पैरो होता है, C से क्रो, K से किंगफिशर. तो ये सारे बर्ड्स के नेम हैं. ऐसे आपको A से लेके Z तक बर्ड्स के नेम लिखने हैं और फिर आपको देखना है कि आपको कितने एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम पता है. नाउ यू हैव टू इमेजिन that an animal followed you to the school one day. What will you do? तो IMAGINE imagine. Imagine का मतलब होता है कल्पना करना. That, THAT that, ANIMAL animal, FOLLOWED followed. Followed का मतलब होता है पीछा करना इस केस में. YOU, U मतलब आप, TO2 SCHOOL school, ONE one,
DAY day. WHAT what मतलब क्या. WILL will. YOU do. तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है दैट एन एनिमल फॉलोड यू टू स्कूल वन डे. आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि एक दिन आप जब स्कूल जा रहे हो, आपके पीछे पीछे एक एनिमल आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपको फॉलो कर रहा है. वॉट विल यू डू, आप क्या करोगे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट एनिमल्स, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ अबाउट एनिमल्स, सो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स. सो if I'm going to the school one day and the animal is following me, I'm going to run away from there. अगर आपकी जगह मैं हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं एनिमल्स को देख के भाग जाऊँगी. तो ऐसे ही अगर आपको भी एनिमल से डर लगता है तो आपको अपना बताना है कि आप क्या करोगे अगर एनिमल आपके पीछे पीछे जा रहा है. राइट, इफ़ यू आर नॉट स्कैर्ड ऑल्सो देन यू हैव टू इमेजिन एंड यू हैव टू टेल व्हाट यू हैव टू डू. सिमिलरली over here we are going to read about what is there in this poem. So the poem name is Mary Had a Little Lamp. इस poem का name क्या है, Mary Had a Little Lamp है. right. Now Mary Had a Little Lamp is about a little girl's pet lamp that likes to follow her wherever she goes. Would you like to know what happens next? Read on. तो Mary Had a Little Lamp किसकी बारे में है. It's about a little girl's pet lamp. ये एक little girl और उसके pet lamp के बारे में है. दैट लाइक्स टू फॉलो हर वेर एवर शी गोज़. जहाँ पर भी वो लिटिल गर्ल जाती है तो उसका जो पेट लैम्प है वो उसके साथ जाता है पीछे पीछे. नाउ वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. क्या आप जानना चाहते हैं उसके बाद क्या होता है. तो इसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. राइट. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू.